الرحیم الحمدللہ رب العالمین وخالق السماوات والارضین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی عبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الذي في التوراة اشتهاره وفي الزبور اوصافه وفي الانجيل اذكاره وفي القرآن اعلانه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وعلى امام المظفر وشجاع الغضنفر وابي الشبائر الشبر وصاحب الطوبى والسكر مولانا ومولاي الثقلين الذي ردت له شمس المرتين وعلى المصلين إلى القبلتين والطائن برمحين الذي قيل في شانه ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين وعلى زوجة طاهرة مطهرة والرزية المرزية والتقية النقية كما قال في القرآن مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنة اللہ علی الکاذبین صلی اللہ علیہ محمد دعا ہے محمد و آل محمد کا خالق شہزادی کونین کے صدقے میں میری اور آپ کی حاضری کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے حاضرین محفل ہیں مالک سوائے غم شبیر کہ ہمیں دنیا کا کوئی غم نہ دے۔ سامعین گرامی قدر، اتنا کریم ہے کریم کربلا، مختصر سا وقت ہے، مختصر سے وقت میں آئے مقدس کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ چند ایک گزارشات اور میرا وقت تمام ہو جائے گا۔ اتنا کریم ہے کریم کربلا، اگر 1.25 لاکھ نبی اپنے مریدوں کے ساتھ حسین کے مہمان ہو جائیں، میرے مولا کے پاس ٹھہرانے کو گھر بھی ہے، کھلانے کو لنگر بھی ہے۔ تو جو فرمائے گا کائنات میں جتنے اللہ کے گھر ہیں اسی طرح حسین کے گھر ہیں۔ ہر بستی، ہر گاؤں، ہر شہر، ہر آبادی یا اللہ کا گھر ہے یا حسین کا گھر ہے۔ اور ہم نے یہ جو محمد و آل محمد کی محبت دلوں میں پال رکھی ہے، یہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں ہے، اس کا نوٹیفیکیشن اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ اگر دنیا کسی کو منوانا چاہتی ہے تو یا وہ اللہ کی کلام سے منائے یا مصطفیٰ کے فرمان سے منائے۔ اللہ نے کہا میرا حبیب ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں۔ مختصر سا وقت ہے اور چند ایک گزارشات اور طالب دعا۔ میرا حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی نساء لاؤ، ہم اپنی نساء لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، اور مل کر کرتے ہیں جھوٹوں پر لعنت۔ ممبر پہ کھڑا ہوں، ممبر رسول مجلس حسین، بزرگان میرے سامنے تشریف فرما ہیں، صاحبان علم میرے سامنے تشریف فرما ہیں، مولا حسین کا ادنا سا نوکر ہونے کی حیثیت سے اپنی قوم کی گارنٹی لے کے ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں کہ ہم شیعہ قوم ضرور مانتے، اور اللہ کا قرآن بھی موٹا نہ ہو جاتا اگر اللہ 2 لفظ اور کہہ دیتا، ازواجنا و ازواجکم۔ سار اٹھانا جنہیں سمجھ آئے، ازواجنا و ازواجکم، اصحابنا و اصحابکم۔ سامعین گرامی قدر سار اٹھائیے گا، اللہ کا قرآن موٹا نہ ہوتا اور ہم شیعہ قوم ضرور مان لیتے
लेकिन याद रखना, अगर मालिक ना बुलाए फिर कमी से नहीं लड़ते। मालिक ना बुलाए फिर कमी से नहीं लड़ते कि तूने हमें कार्ड क्यों नहीं दिया। कमी कार्ड सिर्फ उसको देता है जिसका नाम फरिश्त में मालिक ने दिया होता है। आइए चंद मिनटों में मुबाहिला का पस मंजर देखते हैं कि मुबाहिला हुआ क्यों। नजरान से ईसाई चले, हालत क्या थी? सोने के जेवरात पहने हुए, सोने के लॉकेट, सोने की अंगूठियां, चांदी के काम वाले जूते और चांदी के काम करवा के घोड़ों पे उन्होंने जीने रखी हुई, सोने के लॉकेट, जर्क बर्क रेशमी पोशाकें पहने हुए। यह हुलिया किसी मुसलमान का नहीं हो सकता। इधर मुसलमानों की हालत क्या है? मुसलमानों पर गुर्बत की गशी के दौरे, ये सोने के लॉकेट पहन के, सोने की चेनें पहन के, चांदी के काम वाले जूते पहन के, जर्क बर्क लिबास, रेशमी पोशाकें पहन के, महंगी सवारियों पर बैठ के कतार अंदर कतार नौकरों को लेके नबी को मिलने आए। तो जो फरमाइएगा, जैसे ही नबी की मस्जिद में पहुंचे, नबी ने मुंह फेर लिया। सलाम करते थे, नबी जवाब देते थे, बात करते थे, नबी मुंह फेर लेते थे। पहले दिन ईसाइयत नबी से मुलाकात के लिए गई, नबी ने मुंह फेर लिया। घबरा के परेशान होकर नबी की मस्जिद से बाहर निकले। एक बुजुर्ग सामने आए, नाम मुझे पता है, मैंने लेना नहीं है। उन्होंने देखा ईसाइयत परेशान है, नबी की मस्जिद से बाहर आ रहे हैं। परेशान क्यों हो? तो जो फरमाइएगा, परेशान क्यों हो? दरूद पढ़ना। परेशान क्यों हो? तो जो बेहतर रखिएगा, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं, आपकी तवज्जुहात का तालिब है। उन्होंने कहा चर्चे बड़े सुने थे, बड़ा मेहमान नवाज है। चर्चे बड़े सुने थे, बड़ा मेहमान नवाज है, बड़ा करीम है, बड़ा शफीक है, बड़ा हलीम है, बड़ा हकीम है। ये कैसा मेहमान नवाज है? हम इतनी दूर से चल के आए हैं, सलाम करते हैं, जवाब देता है, बात करते हैं, मुंह फेर लेता है। उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हें पता नहीं है कि कायनात की छोटी से छोटी अदालत में जाना हो, लोग वकील को साथ लेके जाते हैं। तुम कायनात के सबसे बड़े नबी की अदालत में बगैर वकील के चले गए। मुझे वकील करके लेके जाओ, मैं तुम्हारी पैगंबर से मुलाकात करवाता हूं, पढ़े लिखे नौजवान मेरा साथ देना। उन्होंने कहा ठीक है, आप अगर हमदर्दी कर रहे हैं तो मेरे साथ चलिए। उसने कहा हमदर्दी नहीं कर रहा, सोने की 2 डलियां लूंगा, मुझे फीस चाहिए, सोने की 2 डलियां। तो जो फरमाइएगा, जहां तशरीफ फरमाओ। अगले दिन ये बुजुर्ग ईसाइयों को लेके नबी के पास पहुंचे। नबी ने वकील से भी मुंह फेर लिया, मुअत्तल से भी मुंह फेर लिया। अब मुझे बताओ, इंसाफ करके जिससे नबी मुंह फेर ले, उसके पास रह क्या जाता है? जैसे ईसाई परेशान हुए कि शायद पैगंबर से मुलाकात हो ही नहीं पाएगी, एक दूसरे बुजुर्ग मिले। उन्होंने कहा बाबा जी जरा ढीले है, मेरी पहुंच अंदर तक है, मैं आपकी सिफारिश अंदर से भी करवाऊंगा, लेकिन सोने की डलियां 3 लूंगा। सिफारिश आपकी अंदर से भी। ईसाइयों ने कहा हमें पैगंबर से मुलाकात करनी है, जैसे भी हो आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप कीजिए। ये सोने की 3 डलियां ले गए, पैगंबर के पास गए। पैगंबर ने इनसे भी मुलाकात करने से मुंह फेर लिया। मैं कहता हूं जितने हाजरीन बैठे हो, मेरी तारीफ करना, जो मजलिस में आता है वो मलिक साहिबान का मेहमान नहीं होता, वो पढ़ने वाले का मेहमान नहीं होता, वो मेहमान होता है हुसैन इब्न अली का। फिर नौकरों की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो आने वाले मेहमानों की दिल आजारी करें। मैं कहता हूं आशिक तो दूध की नहरें भी खोद लेते हैं। तू तकलीफ कर बाजार जा, तारीख की 2 किताबें खरीद के उनकी वर्करदानी करके उन बंदों के नाम तो पता कर जो ईसाइयों से सोना भी ले गए और पैगंबर से मुलाकात भी ना करवा सके। फिर कुरान सर पर रख के काबे की तरफ रुख करके जमीन की अदालत में पेश होके एक फैसला खुद करना, जिनकी सिफारिश
بہت شکریہ، ممنون ہوں آپ کا۔ جو بندے خاموش رہے آسان کر دیتا ہوں، جن کی سفارش آج رحمت للعالمین کے دربار میں کام نہیں آ رہی، کل ان کی سفارش جباروں کا ہار کے دربار میں کام کیسے آئے گی؟ گھبرائی ہوئی عیسائیت مسجد نبوی سے باہر نکلی، بڑی جلدی کر رہا ہوں، گھبرائی ہوئی عیسائیت بڑبڑاتی نبی کی مسجد سے باہر نکلی، سامنے وہ آ گیا جسے آنا چاہیے تھا۔ بڑبڑاتی ہوئی عیسائیت، صاحبان معرفت سار اٹھانا، بڑبڑاتی ہوئی عیسائیت نبی کی مسجد سے نکل رہی تھی کہ نبی کی مسجد میں سے امامت کے پریس رپورٹر نے اپنی نور کی طرح جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا، جنہیں ادب سے پیار ہے، سینے پر منا اہل بیت کا تمغہ، داڑھی میں بطول کی چوکھٹ کے ذرات کی چاندنی۔ میں کہتا ہوں سلمان کو اس دروازے پر رکھا اس لیے گیا تھا کہ وہ کچھ بندوں پہ نظر رکھے، جنہیں لفظ سمجھ آ رہا ہے، جنہیں لفظ سمجھ آ رہا ہوں سارے، سلمان کو اس دروازے پہ رکھا ہی، وقت نہیں ہے کہ میں رکوں، وقت نہیں ہے کہ اس لیے جلدی کر رہا ہوں، سلمان کو اس دروازے پہ رکھا اس لیے گیا تھا کہ وہ کچھ بندوں پہ نظر رکھے۔ سلمان پادری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے تو جو فرمائے گا دعوت دے رہا اس بندے کو کہ جو مجلس میں آیا ہے، بولنا نہ بولنا تمہارے مقدر کی بات ہے، یہ ذکر حسین ہے۔ سلمان پادری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے یہ مہنگے کپڑے پہن کے، یہ ریشمی پوشاکیں پہن کے، یہ زرد برد لباس پہن کے اس پہ روک ڈالنے آئے ہو جس سے بچوں کے کپڑے جنت سے آتے ہیں۔ علی مولا، علی مولا، ممنون ہوں۔ یہ مہنگی پوشاکیں پہن کے، یہ زرق برق ریشمی لباس پہن کے اس پہ روک ڈالنے آئے ہو جس کے بچوں کے کپڑے جنت سے آتے ہیں، یہ سونے کی انگوٹھیاں پہن کے، یہ سونے کے لاکٹ گلوں میں لٹکا کے اس پہ روک ڈالنے آئے ہو جس کے کمی کو ابو ذر کہتے ہیں، جنہیں ادب سے پیار ہے۔ کیا بات ہے، یہ چاندی کے کام والے جوتے پہن کے، یہ چاندی کے کام والی زینے گوڑوں پہ رکھ کے، یہ نوکروں کو لے کے اس پہ روک ڈالنے آئے ہو جس کے گھر میں فضا چکی چلاتی ہے۔ سر اٹھائیے گا سامنے گرامی، 70 کی قیمت چاہیے، اس پہ روک ڈالنے آئے ہو جس کے گھر میں فضا چکی چلاتی ہے۔ یہ مہنگی سواریاں لے کے، یہ سرخ آنکھوں والے اونٹ لے کے، یہ مہنگے گھوڑے لے کے اس پہ روک ڈالنے آئے ہو جس کی اپنی سواری کو براق کہتے ہیں۔ انہوں نے کیا کریں؟ سلمان پادری کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہتا آؤ میں تمہیں اس کے پاس لے چلتا ہوں جو مزاج نبوت سے آشنا ہے، آؤ میں تمہیں اس کے پاس لے چلتا ہوں جو مزاج نبوت سے آشنا ہے، جو مزاج رسالت سے آشنا ہے۔ سلمان عیسائیوں کو لے کے ابو طالب کے بیٹے کے دروازے پہ پہنچا، علی نے ملاقات کی، عیسائیوں کی طرف دیکھا، دیکھ کے علی فرماتے ہیں سونا اتارو، سونا مرد کے لیے حرام ہے، سارا کہنا ریشم اتارو، ریشم مرد کے لیے حرام ہے، سادہ لباس پہنو، میں تمہاری پیغمبر سے ملاقات کرواتا ہوں۔ عیسائی تھے، بے غیرت نہیں تھے، علی کی بات کو مان کے مراد کو پا گئے، مراد تھی پیغمبر سے ملاقات۔ جو بندہ دعوت دے رہا ہوں، جو بندہ مجلس میں آیا ہے اور جو بادشاہ کے فضائل میں کبھی خوش نہیں ہوا، اس کو دعوت دے رہا ہوں دیکھے میری طرف 14 دن کم از کم اور 40 دن تک عیسیٰ نبی کے امتی پیغمبر سے ملاقات کرنے جاتے تھے، ملاقات نہیں ہوئی۔ آج ابو طالب کا شریف بیٹا عیسائیوں کو لے کے نبی کی مسجد کی طرف جا رہا تھا، ابھی 14 قدم دور تھے، نبی صحابہ سے کہہ رہے تھے صحابیوں اٹھو استقبال کے لیے چلے، مہمان آ رہے ہیں۔ استقبال کے لیے چلیں، کیا بات، مہمان آ رہے ہیں۔ نبی نے استقبال کیا، مسجد میں لا کے سامنے بٹھایا، کیسے آئے؟ انہوں نے کہا جی عیسیٰ نبی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا نبی ہے، بطول زیادہ ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب کلمہ ہے، پاؤں کی ٹھوکر مار کے مردوں کو زندہ کرنے کا ہنر جانتا ہے۔ نبی عیسیٰ کے فضائل پڑھ کے چپ ہوئے، انہوں نے کہا جی بس؟ نبی نے کہا ہاں۔ کہتے ہیں نہیں اللہ کا بیٹا ہے،
नबी फरमाते तेरे पास दलील क्या है? कहते जी उसका बाप नहीं था इसलिए वो अल्लाह का बेटा सर उठाएगा। नबी मुस्कुरा के फरमाते फिर आदम को भी मानो उसकी तो मां भी नहीं थी। कहते नहीं ईसा अल्लाह का बेटा है। सामने ग्रामी कहते इख्तलाफ है रवायत का 3 दिन 21 दिन या 40 दिन तक मुस्तफा कुरान पढ़ पढ़ के सुनाते रहे लेकिन ईसा नबी के उम्मती ना माने। फिर उसकी आवाज आई मेरा हबीब अगर ये कुरान को नहीं मानते तो इनसे कह मैं अपने बेटे लाता हूं, तुम अपने बेटे लाओ, मैं अपनी निशा लाता हूं, तुम अपनी निशा लाओ, मैं अपने जैसे लाता हूं, तुम अपने जैसे लाओ। आज की मजलिस में मिंबर हुसैन के जरिए से उन लोगों को मैसेज लेके जाना चाहता हूं जो ये समझते हैं और ये नारे बुलंद करते हैं कि हमारे लिए कुरान काफी है। मैं कहता हूं अकल के दुश्मनों जो कुरान खुद जमाने मोहम्मद में अहले बैत के बगैर मोहम्मद मुस्तफा के लिए काफी नहीं था और 1400 साल बाद अहले बैत के बगैर तुम्हारे लिए काफी कैसे हो? पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद बस गुफ्तगू तमाम हुई। नबी ने ऐलान किया था कि तुम अपने जैसे लाओ, मैं अपने जैसे लाता हूं। जैसे ही ऐलान सुना लोगों ने कुछ बंदों को तो बड़ी खुशफहमी हुई। उन्होंने कहा ये ऐलान कराया है इस बेचारे का हमारे अलावा अपना है कौन? वक्त तो तब इसकी तशरीह करता है इस बेचारे का हमारे अलावा अपना है कौन? मुकदमा इब्ने खल्दून वाले ने भी लिखा, सीरत इब्ने हशाम वाले ने भी लिखा। उन्होंने कहा ठीक ठाक तैयारियां थी, लोगों ने ऐलान सुना, नई नई पोशाकें पहनी, खुशबुएं लगा ली, पर्दे लटक गए, लोगों ने घरों को रोशन कर लिया, गलियां बाजार सज गए। हत्ता कि ऐसा समा था मदीने में कि किसी पूछने वाले को पूछना पड़ गया मुसलमानों आज तुम्हारी ईद है? उन्होंने कहा ईद नहीं मुबाहला है। उसने कहा ये मुबाहला क्या होता है? उन्होंने कहा ये तो नहीं पता, अलबत्ता पैगंबर ने ऐलान किया मुबाहले पे जाना इसलिए हम तैयार हैं। बुजुर्ग जानते हैं, बच्चों के लिए अर्ज कर दूं 4 हम वज़न लफ्ज हैं, एक मुशायरा, एक मुनाजिरा, एक मुफाखरा और चौथा है मुबाहला। जब शायर शायरी में मुकाबला करें तो इसे मुशायरा कहते हैं, जब मौलवी मजहब पे लड़ पड़े तो इसे मुनाजरा कहते हैं, जब 2 खानदान हसब नसब के एतबार से एक दूसरे पर फख्र करें तो इसे मुफाखरा कहते हैं, जब सच्चे झूठों पर लानत करें तो इसे मुबाहला कहते हैं। आज प्रोपेगेंडा करते हो कि हमने हुसैन को कत्ल किया शियों ने और आज खुद ही मातम करते हैं। मैं कहता हूं प्रोपेगेंडा छोड़ो, मुअस्सिसीने इलाका को जमा करके तेरी मर्जी का मरकजी चौक मुंतखब करके गली गली में ऐलान करके लोगों को जन्मे तफसीर बना के हुसैन के कातलों के नाम लिख के मिल के करते हैं लानत। जिसका चेहरा खुशी से खिल जाए समझ लेना हुसैनी है, लानत पलट के जिसके चेहरे पे पड़ जाए समझ लेना यजीद की औलाद है। दुरूद पढ़ते मोहम्मद उन्होंने कहा कि ऐलान करके आया है कि मैं अपनों के लेके आऊंगा, इस बेचारे का हमारे अलावा अपना है कौन? एक सिपाही ने तो बड़ी जोर से जमीन पे पैर मारा। खैबर में मैं जाना नहीं चाहता था, मैंने कहा भी था मेरी बीवी बीमार है, तब लेके गए। आज मैं जाना चाहता हूं, मुझे लेके नहीं जा रहे। किसी ने आगे से जवाब दिया, यकीनन ये किया। मैंने कहा सलमान को रखा इस दरवाजे पे ऐसे है कि कुछ कुछ बंदों पे नजर रखे। सलमान देख के कहता सच्चू ने जाना है, सारू भाइएगा। सलमान कहता सच्चू ने जाना है। गया कौन? एक सैयदुल अंबिया
आपकी मार्फत पे कुर्बानी। एक सैयदुल अंबिया, एक सैयदुल औसिया, एक सैयदतुन निसाइल आलमीन, दो सैयदाए शबाब अहलुल जन्ना। फिर मुझे कहने दो, सरदार मुबाहले में चले गए थे, कमी मदीने में रह गए थे। उन्होंने कहा इस बेचारे का हमारे अलावा अपना है कौन। जैसे ही रसूल ने दरवाजे पे भीड़ देखी, रसूल ने एक नजर भीड़ को देखा, एक नजर सलमान की तरफ देखा। अल्लाह जाने आंखों ही आंखों में क्या इशारा किया, और वो सलमान ही क्या जो इशारे न समझे। सलमान के इशारे होने के बाद सलमान एक एक बंदे के पास गया, कुरान की आयत नहीं सुनी, कुरान नहीं सुना। आप अल्लाह कह रहा है आप ना आना, सारा कहिएगा जिन्हें समझ आ रही। अल्लाह कह रहा है आप ना आना, अल्लाह कह रहा है आप ना आना। पहले जो तुम आते थे वो था तीर तलवार नेज़े का मैदान, पहाड़ी पे चढ़ के तीर तलवार नेज़े से बचा जा सकता है। ये मुकाबला है किरदार की जंग। यहाँ पे सच्ची ने झूठों पे लानत कर दी है, और एक मर्तबा लानत पीछे लग गई, फिर क़यामत तक पीछा नहीं छोड़ेगी। ईसाइयों ने माफी मांगी, सदात का काफिला वापस हुआ। बतूल मुस्कुरा रही थी, नबी रो रहे थे। और पता क्यों रो रहे थे? जैसे ही बतूल को पादरी ने देखा ना, जल्दी से अपनी कौम के सरदार के पास आके कहता है मुझे तश्तरी में रख के 10,000 दिनार दो। कौम के सरदार ने कहा कि हमने जिजिया दिया, माफी मांगी, अब 10,000 दिनार क्यों मांगता है? अब मुझे नहीं पता साहिबा ने मार्फत तेरे दिल में कब्र हुसैन है, कौन बंदा इस जुमले की गहराई तक जाता है। पादरी की आंखों में आंसू थे। कौम के सरदार की तरफ देख कर कहता है इतने बड़े बंदे की बेटी चल के आई है, उसे खाली लौटा दो। इससे बड़ा मुसाहिब कायनात में हो नहीं सकता। इतने बड़े बंदे की बेटी चल के आई है, उसे खाली लौटा दो। सरदार ने तश्तरी पे 10,000 दिनार रखे, पादरी के लाके कदमों में रख दिए। पादरी ने रोना शुरू किया। सरदार कहता तूने दिनार मांगे थे, हमने तुझे दे दिए, अब रोता क्यों है? पादरी रो के कहता है रो इसलिए रहा हूं, पेश कैसे करूं, मैं मर्द हूं वो बतूल है। अल्लामा अली नकी ने पढ़ा, ताहर जलवी ने पढ़ा, दो बड़ी इल्मी शख्सियत का हवाला दे रहा हूं, इन्होंने पढ़ा है अपनी मजलिसों में। कहते हैं कि कौम ने पादरी को जमा करके पादरी के साथ मिलकर कहा कि हम दुआ करते हैं, ईसा नबी को बुलाते हैं। पादरी ने दुआ की, कौम ने आमीन कहा। ईसा चौथे आसमान से नीचे उतरा। जैसे ईसा पादरी आगे बढ़े, तश्तरी दिनारों की उठाई और आके ईसा नबी के कदमों में रखी। जैसे तश्तरी कदमों में आई, ईसा नबी ने रोना शुरू किया। पादरी हाथ बांध के कहता तू क्यों रोता है, तू तो नबी है। ईसा रो के कहता मैं भी इसलिए रोता हूं, मैं मर्द हूं वो बतूल है। पादरी कहता तू नबी है, तू जान तेरा काम जाने, हम तो नहीं चाहते कि नबी की बेटी खाली जाए। ईसा नबी कहता मैं दुआ करता हूं तुम आमीन को। अम्मा मरियम को बुलाते हैं। ईसा नबी ने दुआ की, मरियम जमीन पे आई। ईसा नबी आगे बढ़ा, तश्तरी मरियम के हाथों पे रखी, हाथों पे रख के कहा अम्मा मैं मर्द हूं, या तू बतूल है या हुसैन की माँ बतूल है, ये तश्तरी ले जाए। तश्तरी मरियम ने अपने हाथों पे रखी, बीबी ने एक हाथ पे चादर रखी, एक हाथ पे तश्तरी रखी। पर्दे का इंतजाम हुआ, बीबी बतूल के पास आई, आवाज दे के कहती है हुसैन रसूल की बेटी, मेरी कौम से गलती होगी, इनके लिए बद्दुआ ना करना, हुसैन की माँ बद्दुआ ना करना। अब जब इसके बाद वापसी का सफर शुरू हुआ तो बतूल मुस्कुरा रही थी, रसूल रो रहे थे। मुस्कुराती बतूल ने पूछा बाबा वो तेरे मानने वाले नहीं है, तेरा कलमा पढ़ने वाले नहीं है, ईसा नबी के उम्मती हैं, उन्होंने मेरी इतनी हया की, मेरी इतनी इज्जत की। बाबा ये रोने का नहीं, खुश होने का मकाम है। नबियों के नबी की चीख निकली, कहा ज़हरा में किसी वक्त को याद करके रो रहा है। 11 हिजरी को रसूल ने दुनिया से आंखें बंद की, उम्मत ने आले रसूल से आंखों को फेर लिया।
बतूल के ज़हन में ये मंजर था, मैं ईसा नबी के उम्मतियों में गई थी, उन्होंने इतना हया किया था, उन्होंने इतना हया किया था, इतनी मेरी शर्म की थी। शायद ये सोच के जब बीबी को इत्तला मिली कि हुकूमत के करिंदों ने मेरे बाग पे कब्जा कर लिया, शायद बतूल ये सोच के बुर्का लेके खवातीन, घर की खवातीन के जुर्मट में चंद कदम चल के दरबार चली गई। हो सकता है बीबी ने सोचा जैसे ही मैं दरबार जाऊंगी तख्त वाला खड़ा हो जाएगा, कुर्सियों वाले कुर्सियां छोड़ देंगे, तख्त वाला उठ के कहेगा तू चल के क्यों आई है, हमें हुक्म दिया था, हम सर के बाद चल के आ जाते, हम तेरे बाप के नौकर हैं, ये तख्त तुम्हारे दिया हुआ है, ये इज्जत तुम्हारी थी। शायद ये सोच के बतूल चंद कदम चल के दरबार आ गई, लेकिन 3 घंटे खड़ी रही, किसी ने नहीं पूछा ज़हरा कैसे आई हो। 3 घंटे के बाद कह रही थी चाचा सलमान मैं थक गई हूँ, चाचा सलमान मैं थक गई हूँ। तख्त वाला बोल के बेगैरत कह रहा था ज़हरा कैसे आई है, कहा अपना हक लेने, कहता है कोई गवाह पेश कर। बीबी कहती है मेरा हसन गवाह, मेरा हुसैन गवाह, कहता है कि तेरे बच्चे इनकी गवाही कबूल नहीं, कोई लिखी हुई तहरीर है तो बता, मुझे कुरान की इज्जत की कसम, मजलिस की तकद्दुस की कसम, पहली मर्तबा जिंदगी में बतूल का हाथ चादर से बाहर आया, बीबी ने बाप के हाथ की लिखी हुई तहरीर आगे बढ़ाई। और जितने बुजुर्ग बैठे हुए हो जाकरीन से सुनते हो, 3 घंटे में बतूल बूढ़ी हो गई। मेरे सर पे कुरान रखो, छोटा सा नौकर हूँ मौला हुसैन का, मैं कसम खा के कहता हूँ 3 घंटे में नहीं 3 मिनटों में बतूल बूढ़ी हो गई थी। जब इसने तहरीर के सनद के टुकड़े फाड़ के जमीन पे फेंके तो बतूल बीबी जमीन पे बैठ के टुकड़ों को जमा कर रही थी।